वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये स्टोरी मेरे को क्लास 11th में मेरे मैथ्स टीचर ने सुनाई थी। सो नाउ एज यू नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a part of the class 10th curriculum, but a few years ago arithmetic progression, or what you refer as AP, it was actually a part of class 11th curriculum. This is a very interesting story and it has stayed in my memory since long. In fact, I have this story in the back of my mind every time I'm solving any problem related to sum of n terms of an arithmetic progression. So let's get started with this story. Okay, so this is the story about a German mathematician by the name of Carl Friedrich Gauss. This mathematician was born in 1777 and died in 1855. So kind of give and take, this story is around 250 years old story. Now, when Gauss went to school, one day what happened is कि उसके mathematics के teacher ने उसको एक problem दी, and the problem was he told them, can you find the sum of first 100 numbers, first 100 natural numbers. So this was the problem given to Gauss कि 1 to 100 जो numbers होते हैं उनका sum निकालिए. Now what Gauss basically observed is उसने इन numbers को ascending order के अंदर he wrote these numbers 47, 48, 49, 50. He wrote half of the numbers. And then what he did is the rest half of the numbers उसने उल्टी sequence के अंदर वापस रखे 51, 52, 53, 54 and so on and so forth. Here he wrote 96, 97, 98, 99, 100. तो उसने इन नंबर्स को इस तरह से लिखा. अब आप 1 और 100 को ऐड करिए एंड यू विल ऑब्जर्व द सम इज 101. 2 और 99 को ऐड करिए, यू विल ऑब्जर्व द सम इज 101. एंड सिमिलरली 3 और 98 को ऐड करिए, सम इज 101 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज दैट what he effectively observed was that the first term when added to the last term is 101. The second term when added to the second last term is also 101. The third last term when added, the third term from the start when added to the third last term is again 101. So he observed कि जब हम equidistant terms को from the starting and ending से जो equidistant terms हैं उनको add करते हैं तो the sum is a constant. And अगर इससे हमें infer करना है कि ये sum कैसे निकालना है, तो what we can basically say is 101. We can say this sum is nothing but 50 times 101. This is nothing but 50 times 101, which is 2550. So उसने इस तरह से आंसर डिवाइस करके अपने टीचर को दिया. अभी हम क्या करते हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो उसने क्या बोला, बेसिकली इफ़ यू हैव n नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम n जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. हमने एक्चुअली क्या किया, इसने कैलकुलेशन करी है. ही सेड देयर आर 100 नंबर्स बट I paired them, so I divided them by 2, so I got 50 pairs. So I'm talking about 50 pairs here. And then what he said is, then he said हर एक पेयर का जो सम है वो 101 था, which is basically nothing but the sum of first and the, let me call the last term as L. फर्स्ट एंड लास्ट को L कह सकते हो, या सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को भी आप L कह सकते हो. इसको अगर हम
लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज इट इज़ नथिंग बट n नंबर्स थे, उनको मैंने 2 से डिवाइड किया टू गेट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड देन आई डिड a प्लस l। और इस केस के अंदर उसने किया n प्लस 1, n into n plus 1. This is how he got the formula that the sum of n natural numbers is n into n plus 1 by 2. अब इसी के अंदर this example which we considered, इसके अंदर हमारे पास even number of terms थी, इसके अंदर हमारे पास even number of terms थी. We can also consider an example where we are having odd number of terms and we can prove that the formula will hold true for that also. Let's say 100 की जगह मैं 25 नंबर्स की सीक्वेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, का सम निकालने की कोशिश करता हूँ. So what I will do is I will write these numbers और again I will just go till midway 13th, but वापस आते हुए मैं 13 के नीचे कुछ नहीं लिखूँगा. I will write 14 here, that makes it, and I will write 21 here, and here I will write 22, here I will write 23, I will write 24, and I will write 25. Let me just quickly correct this. I will write these as 21 and I will write this as 14. This as 14. अब इनको अगर मैं सम करने की कोशिश करूं, then again what I observe is first and last term is 26, second and second last 26, and everything is 26. बट मेरे पास एक 13th जो कि सेंट्रल टर्म है वो सेपरेट रह जाती है. तो am I still dealing with a similar kind of thing? I am saying कि मेरे पास 25 terms थी and I am going to make 12.5 pairs out of these, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बेसिकली 1 + 25 से. So what I'm going to do is I'm going to do 25 by 2. I'm going to do 25 divided by 2 into 26, which is 25 into 13, which comes to 325. So इस केस के अंदर भी n into n plus 1 actually takes care of itself. The important thing is ये जो n by 2 है ये क्या करता है, उसको हाफ टाइम काउंट कर लेता है. n into this formula still holds true. The only thing what you would have observed is that इसमें 12.5 पेयर हैं. We are not talking about 12 players, we are talking about 12 pairs and then half a pair which is the middle number which is 13. Now so गॉस ने अपने टीचर को बेसिकली आंसर दिया कि n into n by 2 into n plus 1 is the sum of n natural numbers of an series which was given to him. अब हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस के अंदर हाउ वी कैन इन्फर द सेम फार्मूला. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हमें अभी तक पता चल गया है, हमें ये पता चला है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमें अभी तक हमने डिराइव किया है. इट इज़ n into n plus 1 by 2. नाउ लेट अस टेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हम एक छोटी सी सीरीज लेते हैं जिसके अंदर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. आप इसमें नोटिस करिए दिस इज़ अ स्मॉल सीक्वेंस जिसके अंदर हमने सिर्फ 6 टर्म ली हैं और हमें अगर इन 6 टर्म्स का सम निकालना है तो 2 + 12 वी नो दिस इज़ 14. अगर हम 4 + 10 करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो 14. एंड अगर हम बीच में 6 + 8 करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो 14. तो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो, पहले हमने डिस्कस किया था फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो उसके अंदर हम बोल रहे थे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम है वो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म के बराबर है. दैट इज़ अगेन इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट. इस केस में हम सिमिलर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म sum up to a number which is equal to the sum of second and second last, the third and third last, the fourth and fourth last. तो इस केस के अंदर भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कितने पेयर्स बनाए, हमने जितने नंबर्स थे उनसे आधे पेयर बनाए. तो अगेन वी क्रिएटेड
n/2 नंबर ऑफ पेयर्स, और हमने क्या बोला इसके अंदर कि पहली टर्म अगर a रही होगी और अंतिम टर्म अगर l रही होगी तो द सेम थिंग वी आर इन्फरिंग हेयर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली दिस इज द सेम थिंग वी हैव डन। n/2 यहाँ भी था, n/2 यहाँ भी था। यहाँ हम जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हम उसे a प्लस l ले लेते हैं, विच इज़ नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम ले लेते हैं। और a1 प्लस n क्या है, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब हम एज कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, एज कंक्लूजन हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को हम लिख सकते हैं n इंटू n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ a क्या है, a है मेरी फर्स्ट टर्म और l क्या है, l है मेरी लास्ट टर्म। अब l को अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो द सेकेंड वे आई कैन राइट दिस इज, अगेन दिस इज द सेम थिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 2a plus n minus 1 into d, and then already you have learned sum of n natural numbers। अगर हमें n natural numbers का करना है तो that is equal to n into n plus 1/2। तो ये बेसिकली हमको यहाँ तीन फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला हमको याद करना है n/2 इंटू a प्लस l, सेकेंड इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और तीसरा फार्मूला ये है। दीज आर द थ्री फार्मूले हमको याद रखने हैं। और इनको इम्पॉर्टेंट व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी इज कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस लास्ट, दैट इज़ हाउ आई विल रिमेंबर। तो इस स्टोरी से आई विल रिमेंबर दिस फार्मूला इन दिस वे रादर दैन मगिंग अप द फार्मूला। मैं इस फार्मूले को हमेशा ऐसे याद रखूँगा कि दिस इज़ n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस लास्ट, और इट इज़ हाफ पेयर्स और को मल्टीप्लाई करूँगा n/2 जो कि हाफ पेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करूँगा सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। ओके, सो दैट वाज द लास्ट स्टोरी। अब हम गो अहेड करते हैं, विल गो अहेड फ्रॉम हेयर। विल बेसिकली आई वांट टू क्विकली गो थ्रू द फार्मूलाज। तो हम इनसे पहले कि एग्जाम्पलर सॉल्व करनी स्टार्ट करें उससे पहले आई विल जस्ट गो थ्रू द फार्मूला। तो ये 5 फार्मूले बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं। पहली चीज़ क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज़ obtained बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर पहली टर्म a है, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस d, उससे नेक्स्ट इज a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज कि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, जो नंबर हम ऐड करते रहते हैं हर टर्म को सब्सिक्वेंट टर्म लाने के लिए, वो d है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि d कैन बी पॉजिटिव, d कैन बी नेगेटिव और d कैन बी ज़ीरो। अगर d ज़ीरो होगा तो दैट मीन्स इस प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स एक समान है, बराबर हैं। अगर हमको प्रूव करना हो कि कोई भी टर्म एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म a k प्लस 1 और a k, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए और ये डिफरेंस हमेशा d है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k कुछ भी रहे, अगर a k प्लस 1 माइनस a k एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है, हमेशा ये नंबर सेम आता है, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जब डिफरेंस निकाला जाए तो वो d है, तो दैट मीन्स दैट प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d, ये सबको पता है। और इससे पिछली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ n टर्म्स निकालने का तरीका है n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म विच इज़ a प्लस l, या फिर इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर हमें l की फॉर्म में नहीं रखना है तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और लास्ट फार्मूला आई थिंक जो कि हमारे एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स अगर निकाला जाए तो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये की फार्मूलाज हैं। आई थिंक ये फार्मूलाज हम सबको पता है। दिस वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू रिवाइज दिस फार्मूलाज। और इसके बाद हम डायरेक्टली नाउ वी गो फ्रॉम हेयर टू एक्सरसाइज 5.1। चलिए, तो दिस इज द एक्सरसाइज 5.1, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर।
In an arithmetic progression, if d is equal to -4, n is 7, an is 4, then a की वैल्यू क्या है? पूछा क्या है? a है फर्स्ट टर्म. अब इस टर्म का जो इसका जो सोल्यूशन है, लेट्स ट्राई टू गेट स्टार्टेड. इसका सोल्यूशन बेसिकली हमको ये पता है कि अगर a n होता है, a nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसके अंदर हमको ये पता है कि d की वैल्यू हमें दे रखी है -4, n की वैल्यू दे रखी है 7, an की वैल्यू दे रखी है 4. तो इन सबको हम सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं an की. तो an की इसको हम फॉर्मूला में लिख देते हैं. 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है इज़ वॉट वी डोंट नो, प्लस n इज़ 7 -1 इंटू d इज़ -4. 4 is equal to a plus 6 into -4, a minus 24, a is equal to 28, which is basically my D option. Simple formula, आपको formula याद रखना है and you will be able to apply this and get it. चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. काफ़ी आसान एक्सरसाइज है ये. इनिशियल एक्सरसाइज जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है कि a की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5 और d की वैल्यू इस केस में दे रखी है 0. देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूले हमने रिवाइज करे तो हमने याद किया था कि जो d है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है. और इस केस के अंदर n जो है वो 101 है. अब इस केस के अंदर बेसिकली वो हमसे बोल रहा है कि हमें a n निकालना है, तो विच इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब a n क्या है? हमें बेसिकली वो बोल रहा है कि a 101 टर्म आप निकालिए, 101 टर्म आप निकालिए और a हमें दे रखा है 3.5 और d जो है वो बोल रखा है कि 101 माइनस 1 और d हमें 0 दे रखा है. तो ये जो इसकी टर्म है, ये टर्म तो हमेशा ही 0 होने वाली है. तो A101 जो है इस केस के अंदर वो 3.5 ही होने वाला है. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक्चुअली ऐसे है 3.5, सेकेंड टर्म भी इसका 3.5, थर्ड टर्म भी 3.5, फोर्थ टर्म भी 3.5, फिफ्थ टर्म भी 3.5 और किसी भी सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है. और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब ये जाते 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 आप जब 101 द 101st टर्म निकालेंगे तो वो भी आपको 3.5 ही मिलेगी इस केस के अंदर. इंपॉर्टेंट आई थिंक की कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बट दैट इज़ इनकरेक्ट. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0 एज वेल. दैट इज़ द की टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये नंबर्स मेरे को दे रखे हैं, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं इन नंबर्स को ऐसे के ऐसे लिख लेने वाला हूँ. मैं इसको बोलूँगा A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4. मैं निकालूँगा A2 माइनस A1 निकालूँगा. मैं A3 में से A2 निकाल के देखूँगा. मैं सारे डिफरेंसेस बेसिकली निकाल के देखने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ कि ये क्या इन टर्म्स के बीच में हो क्या रहा है. तो -6 + 10 -2 + 6 2 + 2 इज इक्वल टू 4 4 4. तो मैंने सब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालने की कोशिश करी. A2 में से A1 का डिफरेंस क्या निकला? मेरा 4 निकला. A3 और A2 का डिफरेंस भी 4 निकला. A3 और A4 का डिफरेंस भी 4 निकला. और 4 को मैं क्या कर रहा हूँ? हमेशा ऐड कर रहा हूँ. तो क्या मैंने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी एक मैं टर्म लूँ, AK + 1 माइनस A ऑफ K, दो कंसेक्यूटिव टर्म को मैं लूँ तो उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा 4 आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं चाहे सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस लूँ, मैं थर्ड और सेकंड का लूँ, मैं फोर्थ और थर्ड का लूँ, बट ये डिफरेंस जो है वो हमेशा 4 आता है. सिंस ये डिफरेंस हमेशा 4 है, हेंस प्रूव्ड दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है और हम इस चीज़ को नेगेट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको नेगेट कर सकते हैं. और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है आप देखिए, इसके अंदर हम 4 जो टर्म है, 4 नंबर है जो उसको हम ऐड करते जा रहे हैं. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है इस केस के अंदर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, आपको पहली टर्म पता है जो कि -5 है। डी क्या है इस केस के अंदर? डी आप क्या कर सकते हो, पहले -5 है प्लस फिर -5/2 है, तो डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो टर्म का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं -5/2 में से माइनस करने वाला हूँ -5। सो दिस विल कम डाउन टू -5/2 + 5 = 5/2 आ जाएगा ये, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो d/2 है। ये एक इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है, इसकी 11वीं टर्म निकालनी है। तो a11 = a + n-1 × d। तो a11 हो जाएगा हमारा a + 10 टाइम्स d हो जाएगा। तो a11 अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। a की वैल्यू मेरे पास -5 है और d की वैल्यू मेरे पास 5/2 है। तो a11 = -5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25। तो a11 = 20 आ जाएगा मेरे पास इस केस के अंदर। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 20, यानी कि बी ऑप्शन इस केस के अंदर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज -2। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो -2 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस जो है वो अगेन इट इज़ -2 दे रखा है। तो इसकी पहली टर्म क्या होगी, इसकी जो a1 टर्म होने वाली है वो तो मेरे पास है ही -2। अब a2 टर्म क्या होगी कि मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, मैं प्लस करूंगा -2, तो ये हो जाएगा -4। a3 क्या हो जाएगा, मैं सेकंड टर्म लूँगा और इसके अंदर मैं प्लस करूँगा -2, तो ये हो जाएगा -6। a4 क्या हो जाएगा, -6 + -2 = -8। तो अगर मैं टर्म्स को लिखने की कोशिश करूँ, -2 -4 -6 -8, ये मेरी टर्म्स हो गई। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज 2 टर्म्स आर -3, हुज फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं -3 और 4। चलिए इसको देखते हैं। पहली टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a, और दूसरी टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ a + d। फर्स्ट 2 टर्म्स ये है -3 इसकी फर्स्ट टर्म है और a + d क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस निकालूं, तो मुझे क्या पता चलता है कि a + d - a जो कि आता चाहिए d। तो मैं 4 -3 लेता हूँ 7। तो मेरे को क्या ये पता चलता है कि मेरा d 7 है। पहली टर्म -3 रही होगी, उसके अंदर जब मैंने 7 जोड़ा होगा तो +4 मिला होगा। तो मुझे इससे क्या पता चल गया, मुझे इससे ये पता चल गया कि जो पहली टर्म है वो -3 है, d जो है वो 7 है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a21। और a21 क्या होता है, a + n-1 × d। और इसको मैं लिख सकता हूँ a + यहाँ क्या है 21 - 1 × d। a21 को लिखा जा सकता है a + 20 टाइम्स d। और अब मैं ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो a है मेरे पास -3 + 20 और ये हो गया मेरे पास 7 = -3 + 140 = 137। ये आंसर हो गया हमारा बी इस केस के अंदर आंसर है 137। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दो चीज़ें दे रखी हैं -3 और 4 दे रखा है, इनको यूज़ करके आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है इफ़ द सेकंड टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज इट्स 7th टर्म। देखिए एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे होता है 2 4 6 8, अगर मेरे को इसकी चौथी टर्म निकालनी है, तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, a + n - 1 × d कर रहा हूँ।
तो मैं A4 के अंदर क्या कर रहा हूँ, A प्लस, अब n को 4 डाल के देखिए तो 3D है, तो मैं A के अंदर 3 डिफरेंसेस को ऐड कर देता हूँ, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो ऐसे मेरे को हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, A प्लस 4 टाइम्स D कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मेरे को A 45th टर्म निकालनी है तो A 45th टर्म क्या है, A प्लस 44D, 44 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को मैं ऐड कर देता हूँ A के अंदर। तो अगर मेरे को इसकी सेकंड टर्म पता है, इफ द सेकंड टर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मतलब कि सेकंड टर्म क्या होती है, A2 को कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस D, और ये दे रखा है मेरे को 13। और फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म क्या है, A प्लस कितनी बार D, 4 टाइम्स D इज इक्वल टू 25। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और इन दोनों इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से मैं 1 - 2 कर देता हूँ। 1 - 2 अगर मैं करूँगा तो A और A कैंसिल हो जाएंगे, -3 ऑफ D इज इक्वल टू 13 माइनस 25 माइनस 3D इज इक्वल टू -12, ये माइनस और माइनस चला जाएगा, D इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 4 एक कॉमन डिफरेंस है। तो ये एक इंक्रीजिंग DP है, इंक्रीजिंग AP है, ठीक है। अब मेरे को इसकी 7th टर्म निकालनी है, तो अब मुझे A भी निकालना होगा। अब अगर मेरे को D पता चल गया है और मेरे को ये पता था कि A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 13, और इसमें मेरे को ये पता है कि D की वैल्यू 4 है, तो इससे मेरे को ये पता चल जाता है कि A की वैल्यू जो है वो 9 है। तो मुझे A 9 पता चल गया और D मेरे को 4 पता चल गया। एक बार मेरे को ये पार्ट पता चल गया तो अब मेरे को निकालनी है 7th टर्म, और 7th टर्म क्या है, A प्लस n-1 इंटू D, n की वैल्यू 7, तो A प्लस 6D है। तो अब इसको A को डाल देते हैं 9 और 6 टाइम द कॉमन डिफरेंस 24, 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन B इज़ द ऑप्शन है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये था, 2 पार्ट थे बेसिकली। एक तो ये था कि मेरे पास 2 डेटा सेट दे रखे थे, मेरे को 13 और 25 सेकेंड और फिफ्थ टर्म दे रखी थी, तो इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने A और D की वैल्यू निकाली। एक बार मेरे को पता चल गई तो मैंने फिर अपनी 7th टर्म निकाली। तो बेसिकली 2 स्टेप्स का ये क्वेश्चन था जिसको 2 स्टेप्स के अंदर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, 42, 63, 84 इज 210 कौन सी टर्म है। अब एक चीज़ है, मैं सिंपली सबसे पहले कुछ नहीं करूँगा, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिख लूँगा और मैं निकालने की कोशिश करूँगा कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। भाई 42 माइनस 21 होता क्या है, ये 21 होता है, और 63 माइनस 42 कितना होता है, ये भी 21 होता है। 84 में से 63 निकालो, ये भी 21 होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि पहली टर्म क्या है मेरी, 21। मुझे ये भी पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 21। फर्स्ट टर्म भी 21, कॉमन डिफरेंस भी 21। 210 क्या है, AN, क्या ये फार्मूला जो है, अब इस फार्मूले के अंदर मुझे AN पता है, ये 210 है, मुझे A पता है, ये 21 है। N की वैल्यू मेरे को नहीं पता और D मेरे को पता है 21, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है, वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। एक कप क्या कर सकता हूँ मैं, 21 को इधर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 210 इज इक्वल टू 21 इंटू 1 प्लस n-1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 21n इज इक्वल टू 210, तो n इज इक्वल टू 10 आ गया। n इज़ द, ये 10th टर्म है, जो कि ऑप्शन फिर से हो गया B। वेरी सिंपल, सिर्फ फार्मूले के अंदर आपको सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके D निकालना था, ठीक है, और फिर वंस D इज़ देयर तो फिर आपको उसको फार्मूले में डाल देना है एंड फर्दर यू जस्ट गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 5, यानी कि D इज़ 5, देन A18 और A13 का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप इसको ऑलवेज यू कैन डू इट बाय द फार्मूला, यू कैन ऑलवेज से कि भैया A18 जो होता है वो A प्लस 17D रहता है और A13 जो रहता है वो A प्लस 12D रहता है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माने कि A18 माइनस A13 मेरे को अगर निकालना है तो A तो कैंसिल हो जाएंगे और 17D माइनस 12D आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 5 ऑफ D। तो A18 माइनस A ऑफ 13 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यहाँ दे रखा है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 25।
इसका आंसर हो जाएगा 25। चलिए, काफ़ी इजी और क्विक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इज 32। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। अब A18 जो है वो आपको पता है कि A+17D होता है, ठीक है, और A14 जो है वो आपको पता है कि ये A+13D होता है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, 1 और 2 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये पता चलता है कि A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 17 माइनस 13D, ठीक है, 17D माइनस 13D। तो A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 4D, ये 4D है, और 4D की वैल्यू दे रखी है 32। अगर 4D 32 है तो D क्या है, 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, D इज इक्वल टू 8 इन दिस केस, विच इज़ ऑप्शन नंबर A। 10 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इस वाले पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि उन्होंने D की वैल्यू दे दी थी और बोला था कि A18 माइनस A13 निकालो। तो आपने क्या किया था, बोला था कि इनका डिफरेंस तो 5D होता है, और D मेरे को दे रखा है तो 5D मैंने निकाल लिया। ये हमने 9th क्वेश्चन में करा था। 10th में हमने क्या किया है, हमें दे रखा है 18 और 14th टर्म का डिफरेंस 32 दे रखा है, और ये हमें पता है कि ये 4D आएगा। तो 4D अगर 32 है तो D इज़ 32 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 8। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड द अदर इज -8। तो ये एक AP है। अब हम क्या करते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है, इसका -8 है, एंड हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसका A1 है, ये इस वाली का A1 है, और इसको हम ले लेते हैं, ये इस वाली का A1 है, इस वाली, ये दो हम डिफरेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है, कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर अगर हमें कोई अगर इस केस के अंदर हमें फोर्थ टर्म निकालनी होगी, तो फोर्थ टर्म क्या होगी जी, A+3D होगी, A+3D होगी। तो फोर्थ टर्म जो आएगी वो आएगी -1 + 3D, यही रहेगी। और इस केस के अंदर हम पैरेलल इसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमें अगर फोर्थ टर्म निकालनी पड़ जाए तो वो भी A+3D होगी। 3D तो सेम रहने वाला है, तो हमको ये पता है कि ये इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म जो है वो -8 है, -8 + 3D। तो एक ये सीक्वेंस दे रखी है, एक ये सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों के A4s का अगर डिफरेंस निकाला जाए, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए, तो सीरीज़ 1 का जो A4 है, सीरीज़ 1 का जो A4 है, ये मैं S1 से डिनोट कर देता हूँ, और सीरीज़ 2 का A4 है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म किया जाए, तो 3D तो कट जाएंगे, तो -1 + 3D आएगा, और यहाँ मैं लिखूँगा -8 + 3D लिखूँगा। तो दिस विल कम टू -1 + 3D + 8 - 3D तो कट हो जाएंगे, इक्वल टू 7, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीरीज़ 1 की फोर्थ टर्म माइनस सीरीज़ 2 की फोर्थ टर्म को अगर मैं निकालूंगा तो आंसर मेरे पास आता है 7। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चीज़ के अंदर है वो ये है कि सिंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो एक्चुअली फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही इनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा 7 रहेगा। पहली टर्म्स दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों सीरीज़ की पहली टर्म जो होगा उसके बीच में डिफरेंस 7 रहेगा। दूसरी टर्म लेंगे वो भी 7 रहेगा, तीसरी टर्म लेंगे वो भी 7 रहेगा, चौथी टर्म रहेंगे वो भी 7 रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इसलिए सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 times the 7th term of AP is equal to 11 times the 11th term, then its 18th term will be। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7th टर्म जो है, 7th टर्म को हम लिख सकते हैं A + 6D, और उसी तरह जो 11th टर्म है उसको हम लिख सकते हैं A + 10D। ओके, अब हमें करना क्या है, ये 7th और 11th टर्म दे रखी है, और व्हाट इट इज़ गिवन इज कि 7 times the 7th टर्म, तो 7th time the 7th term is equal to 11th time the 11th term। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, A7 is A + 6D is equal to 11th term A + 10D
7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। तो मैं करता क्या हूँ, ए को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d माइनस 4a इज इक्वल टू 68 टाइम्स d, 68 टाइम d आ जाता है। ठीक है जी। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि 4 से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। माइनस ए इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, ये 17d आ जाएगा, और दोनों को एक ही तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। a प्लस 17d 0 हो गया। ये हमको एक रिलेशनशिप पता चल गया, ये जब हमने सॉल्व किया कि 7 टाइम्स दी 7th टर्म और 11th टाइम दी 11th टर्म को बराबर करते हैं, तो हमको सॉल्व करके हमें पता चल गया कि a प्लस 17d जो है 0। और हमसे मांगा क्या है, वी हैव टू फाइंड बेसिकली a18। और a18 क्या रहता है, a18 कुछ नहीं है, a प्लस 17d ही होता है, और वो हमने अभी इन्फर किया है कि वो 0 है। तो इसका आंसर बेसिकली 0 है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन है 4th टर्म फ्रॉम दी एंड निकालनी है इस पर्टिकुलर चीज़ की। तो एक इसके दो मेथड्स करेंगे हम इसके दो मेथड्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका मेथड 1। मेथड 1 बहुत सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये जो सीक्वेंस है वो है -11, फिर -8 है, फिर -1 है, और करते करते हम इसको लास्ट टर्म में जाते हैं जो कि 49 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम 3 ऐड करते जा रहे हैं। -11 में 3 ऐड करोगे तो -8 हो जाएगा, -8 में 3 ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा। तो 3 हम ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। अब इससे पहले क्या रहा होगा, इधर 3 ऐड करते जा रहे हैं तो सेकेंड लास्ट टर्म 46 रही होगी और हमने +3 करा होगा। पहला तरीका तो बड़ा सिंपल है, हमें एंड से अगर टर्म निकालनी है तो हम इस प्रोग्रेशन को उल्टा कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं 49, 46, 43, 40, जाते जाते -5, -8, -11। अब हमने इस प्रोग्रेशन को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, और जब हमने इसको उल्टा कर दिया तो अब क्या हो रहा है जी, अब ये -3 हो रहा है। अब हम अगर कंपेयर करें कि क्या करते जा रहे हैं, हम 3 कम करते जा रहे हैं, -3 कर रहे हैं। और इस केस के अंदर ये हमारी पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और चौथी है। तो अगर हमें 4 टर्म्स, चौथी टर्म इधर से निकालनी है तो हमने उल्टा कर दिया, तो a4 इज इक्वल टू नथिंग बट a प्लस 3d। और इस उल्टी की हुई, रिवर्स की हुई प्रोग्रेशन के अंदर जो पहली टर्म रहती है वो होती है 49, और जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो होता है -3। तो इज इक्वल टू 49 - 9 इज इक्वल टू 40। तो आंसर बेसिकली हो गया 40। ये है मेरा मेथड 1, ये है मेरा मेथड 1। अब हम करेंगे एक और मेथड जो कि बेसिकली सेकंड काइंड ऑफ मेथड है इन दिस केस। तो हमने किया क्या, पहले मेथड में हमने क्या किया था कि हमने प्रोग्रेशन जो सीरीज़ है उसको उल्टा कर दिया, हमने उस सीरीज़ को बेसिकली उल्टा कर दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इसको सीधा ही रहने दें, इस प्रोग्रेशन को हम सीधा ही कंसिडर करें। और जब हम सीधा कंसिडर करेंगे तो हम ये जानने की इच्छा रखेंगे कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए हम बोलेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें ये पता है कि अनटेम टर्म जो है वो है 49। हमें ये पता है कि प्रथम टर्म जो थी वो -11 थी। n हमें निकालना है, हमें पता नहीं है कितनी टर्म्स हैं, और 3 हम ऐड करते जा रहे हैं। ये -11 को इधर ले जाइए, ये 60 हो जाएगा, n-1 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दीजिए, 20 इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू हो जाएगी 21। माने कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर टोटल 21 टर्म्स हैं, टोटल 21 टर्म्स हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग से एंडिंग, मैं यहाँ सबसे पहले पकड़ूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ सबसे पहले -11 था जी, फिर -8 था जी, फिर -5 था, फिर बहुत सारे नंबर आए, फिर उसके बाद मैं 46 पे पहुँचा और मैं 49 पे पहुँचा। और मेरे को बोला गया है कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर 21 टर्म्स है। मैंने अभी कैलकुलेट करा है कि इसमें 21 टर्म है, और मेरे को अगर अंत से 4th टर्म निकालनी है तो
तो अंत से फोर्थ टर्म जो मैं निकालूंगा तो क्या होगा वो, आप ऐसे लेकर चलिए कि अगर मेरे पास 5 स्टोन्स पड़े थे, ठीक है, 1 मिनट हम इस छोटे एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, और मैंने आपको बोला कि तेरे को सेकंड स्टोन फ्रॉम दी सेकंड स्टोन तेरे को पता लगाना है कि सेकंड स्टोन की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग से व्हाट इज़ दैट नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है, स्टार्टिंग से व्हाट इज़ दैट नंबर ऑफ द टर्म अगर तेरे को बोला जाए तो क्या करना है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए फोर्थ टर्म हेयर। मैं एक सेकेंड इसको लेता हूँ फोर्थ टर्म को, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात करी। मैंने इसको बोला कि मेरे पास यहाँ तीसरा स्टोन है, चौथा स्टोन है, पांचवा स्टोन है। अगर मेरे को ये पता लगाना है कि ये जो स्टार्टिंग का है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और ये फिफ्थ है। अगर मेरे को एंडिंग से सेकंड लेना है, एंडिंग से मेरे को सेकंड लेना है, तो वो 5 - 4 + 1, ठीक है, 5 - 4 + 1 होगा, ठीक है। या मेरे को अगर सेकंड निकालना है, अगर मेरे को सेकंड टर्म अगर निकालनी है एंड से, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 - 2 + 1, ठीक है। तो अगर मेरे को फोर्थ टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग जो है वो सेकंड टर्म फ्रॉम दी एंडिंग के बराबर होगी, तो अगर मेरे को दे रखा होगा कि सेकंड टर्म फ्रॉम दी एंडिंग निकालना है तो मेरे को फोर्थ टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग निकालनी पड़ेगी। तो इस एग्जांपल में अगर टोटल टर्म्स 21 है, मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मेरे को एक्चुअली क्या निकालना है, 21 - 1 - 4 + 1 = 18th टर्म। तो मुझे 18th टर्म निकालनी है इस केस के अंदर। तो 18th टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो A18 = A + 17D, और A की वैल्यू क्या दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है -11 17, और ये क्या है 3 = -11 + 51 = 40। सो इस केस में भी वही आंसर है। देखो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड जो है वो ईजियर है, आपने बेसिकली सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया, और सीक्वेंस को आपने उल्टा कर दिया तो द क्वेश्चन बिकम्स ईजियर बिकॉज योर फर्स्ट लास्ट टर्म एक्चुअली नाउ बिकम्स द फर्स्ट। डी को ऑपोजिट साइन का लेना पड़ेगा, पहले ये जैसे इंक्रीजिंग एपी था, तो जब हमने इसको उल्टा किया तो ये डिक्रीजिंग एपी हो गया, तो डी को -3 यहाँ लेकर कंसिडर करके सॉल्व किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने टोटल टर्म्स निकाल ली। दूसरा मेथड है 21 टर्म्स हैं, चौथी टर्म अंत से निकालनी है, तो चौथी टर्म अंत से स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, स्टार्टिंग से दैट विल बी 21 - 4 + 1 विच इज इक्वल टू दी 18th टर्म होगी इन दिस केस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली 14th क्वेश्चन, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए स्टोरी के हिसाब से गॉस, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसने ये फार्मूला फाइंड किया था n × n + 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15th। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। अब हम नेक्स्ट फार्मूले पे स्टेप अप कर गए हैं, तो हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म जो है इसकी वो है -5, कॉमन डिफरेंस जो हमें दे रखा है 2 है। अब हमें अगर सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 6 टर्म्स इज n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n क्या है, हमें 6 टर्म्स का सम निकालना है, 6/2 ट्वाइस ऑफ a -5 प्लस 6 टर्म्स निकालना है, तो 6 - 1 × d विच इज़ 2 = 3 हो जाएगा। ये होगा -10 + 5 × 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 3 × 0 = 0। अब ये ज़ीरो कैसे हुआ, ये ज़ीरो कैसे हुआ, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये जानने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस टर्म्स को लिखने की कोशिश करेंगे। पहली टर्म क्या है, -5, ठीक है, पहली टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस 2 है, नेक्स्ट टर्म -3 हुई, फिर -1 हुई, फिर 1 3 5। ये देखिए, ये पहली 3 टर्म नेगेटिव थी, अंतिम 3 पॉजिटिव थी, इन्होंने मिलके एक दूसरे को 0 कर दिया, तो सम ऑफ 6 टर्म्स जो है वो 0 है। ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू चेक कि हमारा आंसर सही था। हमने इसको सम को एक्चुअली निकाल के भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP इज। अब इसकी फर्स्ट 16 टर्म्स निकालनी है हमको, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है हमको इसके अंदर। तो A क्या दे रखा है, A इसके अंदर दे रखा है 10, और D क्या है, D आप देखिए ये एक डिक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें क्या कर रहे हैं, 10 के अंदर हमने क्या किया कि 6 हो गया, -4 किया, तो D जो है वो -4 है, और हमें N दे रखा है 16 टर्म्स का निकालना है। तो सम ऑफ N टर्म इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज बस सब्सटीट्यूट करनी है आपको। 16/2 ट्वाइस ऑफ A यानी कि 2 इंटू 10 प्लस N अगेन इज 16 -1, D इज -4 इज इक्वल टू 8 इंटू अंदर आएगा 20 प्लस 15 इंटू -4 इज इक्वल टू 8 इंटू 20 -60 इज इक्वल टू 8 इंटू 20 -40 इज इक्वल टू -320 विच इज़ द आंसर। चलिए, सिंपल फॉर्मूला था, डायरेक्टली अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ एन AP इन एन AP A इज इक्वल टू 1 दे रखा है, A ऑफ N को 20 दे रखा है, और सम ऑफ N 399 दे रखा है, और N निकालना है आपको, N आपको निकालना है। अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को पकड़ते हैं, इस चीज़ को पकड़ते हैं। AN क्या होता है, AN होता है A प्लस N-1 इंटू D दे रखा है, A प्लस N-1 इंटू D दे रखा है, और इसके अंदर ये हमें एक चीज़ पता है कि ये जो चीज़ है ये 20 के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 दे रखा है, ये आप इतना याद रखिए। और Sn जो है वो मेरे को दे रखा है, Sn जो दे रखा है वो दे रखा है N/2 दे रखा है, N/2 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 399। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, इस पूरी सीक्वेंस को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपके पास इस वाली चीज़ के अंदर A गिवन है, ठीक है, ना आपको N पता है ना आपको D पता है। पहली वाली सिचुएशन के अंदर N नहीं पता, D नहीं पता। दूसरी वाली सिचुएशन के अंदर भी आपको A पता है, N-1 N नहीं पता, D नहीं पता। तो आपको बेसिकली यहाँ N और D की वैल्यूज़ नहीं पता, और आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। दैट इज़ द एंड गेम, दैट इज़ द एंड गेम इन दिस केस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका ये है, जो सबसे ईजी तरीका ये रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये चीज़ें सेम है एक्चुअली। मैंने इसीलिए इस फार्मूले को, जो सेकंड वाला फार्मूला है, मैंने इसको ऐसे लिखा है A प्लस N-1 इंटू D लिखा है, मैंने 2A प्लस N-1 D नहीं लिखा। तो मेरे को ये पता है, अगर मेरे को ये पता है और ये 20 है, तो मैं क्या इस Sn को ऐसे लिख सकता हूँ कि A मेरे को वैसे ही पता है, A मेरे को अभी वैसे तो पता है A की वैल्यू, बट मैं अभी A को ऐसे लिखता हूँ, और A प्लस N-1 D की जगह मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 399 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ N/2, और A की वैल्यू मुझे वैसे पता है, तो ये 21 इज इक्वल टू 399 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको कट करूं, 21 टाइम्स 121, और 189 जो है वो 9 टाइम्स जाता है, तो Sn की वैल्यू जो है वो दे रखी है, तो N की वैल्यू क्या हो जाती है, N इज इक्वल टू 38 हो जाता है, N इज इक्वल टू 38 हो गया है। ये एक ईजी वे है इसको निकालने का। आप
ये जो यहाँ ट्रिक बताई गई है कि a प्लस एन माइनस वन डी है, a प्लस एन माइनस वन डी है, इनको सब्सटीट्यूट कर दो. दिस इज़ प्रॉबली द ईजिएस्ट वे इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वैसे आप और भी तरीके से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज प्रॉबली अ शॉर्टकट विच आई हैव शेयर्ड हियर. चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे. लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 है, फिर 6 है, फिर नेक्स्ट मल्टीपल 9 है, फिर नेक्स्ट मल्टीपल 12 है, नेक्स्ट मल्टीपल 15 है. तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है. और इसके केस में जो d है, इस केस में जो d है बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो हर नंबर जो है वो 3 है. तो मेरे को ये पता है कि a मेरा 3 है, d मेरा 3 है, n आपने मेरे को बोला जी कि फर्स्ट 5 का सम निकाल दो. तो हम ये फार्मूला लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन को मैं लूँगा 5 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2, यहाँ लिखूँगा 6 प्लस 4 इंटू 3 आएगा इज इक्वल टू 5 बाई 2, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 is equal to 5 by 2 into 18 is equal to 5 into 9 is equal to 45. हमारा आंसर हो जाएगा इस केस के अंदर, विच इज़ ऑप्शन ए. चलिए, सो विद दिस आई थिंक एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो एग्जाम्पलर की थी वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है. आई वुड से आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन where we will solve the next exercise of exemplar. Hope this session was useful. Thank you all for attending the session. Thank you everybody.